تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتا ہی دیا کہ میرا نام زیبونسا زیبی ہے، اور آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں دبستان علم و ادب کے عنوان کے تحت، وہ موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی ہم مسلمان جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں یہ عبادت بھی۔ تو یہ اعتکاف ہے کیا چیز، اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو تھوڑی بہت معلومات یہاں آپ تک منتقل کر رہی ہوں۔ اعتکاف کے معنی ہیں کسی جگہ ٹھہر جانے کے، اور شریعت میں اعتکاف نام ہے ایسی مسجد میں عبادت کی نیت سے سواد سمجھ کر مقیم ہو جانے کا، جہاں اذان اور باجماعت نماز ہوتی ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مساجد میں بھی ان باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مسجدیں جہاں پر باجماعت نماز بھی ہوتی ہو، اور جامع مسجد میں اعتکاف لازمی ہوتا ہے، اور باجماعت نماز وہاں پر ہوتی ہو، اذان اور باجماعت نماز، اچھا، اور جامع مسجد ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں چھوٹی مساجد جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہر علاقے میں مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں آپ اپنی 5 وقت کی نماز جو ہے قریب کے لوگ آرام سے جا کر ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن جب عید کی نماز ہو یا اعتکاف وغیرہ ہو یا اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کے لیے بڑی مسجد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور وہ بڑی مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پر سارے مسلمان شریک ہوتے ہیں، اور ان میں جا کر وہ اپنی دیگر عبادات کے لیے ٹھہر بھی سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں، جیسے اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کر ہی دیا کہ اعتکاف کے معنی ہیں کسی جگہ ٹھہر جانے کے۔ تو کہاں پر ٹھہرنا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ شریعت میں اعتکاف نام ہے ایسی مسجد میں عبادت کی نیت سے ثواب سمجھ کر مقیم ہو جانا، جہاں اذان اور باجماعت نماز ہوتی ہو، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اگر آپ کو جامع مسجد مل جاتی ہے تو وہاں پر اعتکاف کرنا بہت ہی زیادہ افضل ہے، جامع مسجد اگر ہو تو، ٹھیک ہے۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، تمام دنیاوی کاموں سے علیحدہ ہو کر ذکر الہی کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، دعا وغیرہ میں مشغول رہے، استغفار کرے، نوافل ادا کرے، اور جو ہے وہ مسجد میں فضولیات سے بچے، اور ان دنیاوی جتنی بھی جتنے بھی آپ کے ایسے کام ہیں جو آپ کو اپنے جانب متوجہ رکھتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، برائیوں سے بچیں، اور صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھیے اور عبادت کیجیے اور اچھی باتیں کیجیے، اور ان اچھی باتوں کو ہی آگے بھی آپ پہنچائیے۔ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو کسی جامع مسجد تک جمعے کی نماز کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور مسجد میں جو ہے وہ جو ضروری حاجات ہیں آپ کی واش روم وغیرہ جانے کی، اس کے لیے آپ مسجد سے باہر جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں مسجد سے باہر، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ ایسی مسجد میں ہیں جہاں جامع مسجد نہیں ہے اور اس میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، تو جمعے کی نماز کے لیے پھر آپ جانا چاہیں تو اعتکاف میں سے جا سکتے ہیں، لیکن اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اعتکاف میں ایسی جگہ پر بیٹھا جائے جہاں سے مسجد سے آپ کو نکل کر نہ جانا پڑے، اور آپ نے جتنے عرصے کے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے اتنے عرصہ آپ مسجد میں ہی قیام کریں، کھانے پینے کی تمام ضروریات بھی آپ کی مسجد میں ہی پوری ہوں، اور اس کے علاوہ آپ عبادت کے علاوہ آپ کوئی اور کام نہ کریں یا کسی اور طرف متوجہ نہ ہوں، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس کے نزدیک تر پہنچ جانا پڑتا ہے، اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو کچھ دیر کے لیے ہمیں بھولنا پڑتا ہے، دنیاوی کاموں سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے فضول کام بھی ہیں جن میں ہم دن بھر پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ ایسی حالت میں ہمیں ان سے دور ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی 20 رمضان المبارک کی شام میں مغرب کے وقت سے یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر ساری بستی میں کوئی ایک مسلمان بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے
तो सुन्नत अदा हो जाती है, वरना बस्ती के तमाम मुसलमान तर्क सुन्नत के मुजरिम होंगे। तो कोशिश ये करते हैं हम सारे मुसलमान, एक तो नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की हम पर रहमत है, बरकत है, और हम चूँकि मुसलमान हैं तो एक मस्जिद में सिर्फ़ एक नहीं बल्कि कई लोग जो है एतकाफ़ में बैठते हैं उस इलाके के। लेकिन फिर भी बहरहाल ये कहा गया है कि ऐसी जगह हो या ऐसी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा हो, जैसे बहुत से इलाके हैं हमारे, कश्मीर के हालात हैं, फ़लस्तीन के हालात हैं, बहुत सारे जगहों के हालात ऐसे हैं कि शायद मुमकिन ना होता हो वहाँ एतकाफ़ में बैठना, तो और मुश्किल हो जाता हो ज़्यादातर लोगों का वहाँ पर बैठना, या लोग इस तरह से बैठ जाते होंगे कि कुछ लोग पहरा देते होंगे और कुछ लोग एतकाफ़ में बैठते होंगे, क्योंकि मसाजिद पर भी हमले होते हैं और बहुत ही जुल्म सितम ये सब चीज़ें जो है रवा है बाज़ इलाक़ों में, और मुसलमानों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में जो है फिर कहा गया है कि सिर्फ एक उस बस्ती का एक बंदा भी अगर एतकाफ़ में बैठ जाता है तो तमाम बस्ती की तरफ से अगर एक मुसलमान भी बैठ जाता है तो समझ लीजिए सुन्नत अदा हो गई। और अगर उस बस्ती में से एक मुसलमान भी ना उस एतकाफ़ में बैठे तो उस बस्ती के तमाम लोग मुजरिम होंगे। तो इस सुन्नत के मुजरिम होंगे। तो तर्क सुन्नत करना जुर्माना फ़ेल हो जाएगा अगर आपकी बस्ती के लोगों में से कोई भी मस्जिद में जाकर एतकाफ़ में नहीं बैठता। हालत एतकाफ़ में नमाज जनाज़ा में शरीक ना हो और मरीज़ की इयादत भी ना करे। ठीक है, जब हालत एतकाफ़ में आप हैं तो देखिए अल्लाह ताला रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों और फजीलतों और बरकतों की जो है वो नवाजिशें हम पर करता रहे मेरा रब, हम पर किसी पर ऐसा कोई मुश्किल वक्त ना आए। तो कहा जाता है कि हालत एतकाफ़ में जो है और मरीज़ की आदत के लिए भी आप ना जाएं और नमाज जनाजा में भी शिरकत ना करें। ठीक है, औरतें अगर एतकाफ़ करना चाहें तो अपने घर में ही जिस जगह पढ़ा करती है नमाज उसी जगह एतकाफ़ की नीयत करके वहाँ पर रहें। घर में नमाज की कोई जगह मुकर्रर हो ना हो तो एतकाफ़ शुरू करने से पहले कोई जगह बना ली जाए, फिर उस जगह इबादत की नीयत से एतकाफ़ करें और क़ज़ाए हाजत के सिवा उस जगह से उठकर दूसरी जगह ना जाए। जब वहाँ से उठे तो किसी से कोई बात ना करें, लेकिन औरतों को बग़ैर इजाज़त अपने शौहरों के एतकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि अपने शौहर से इजाज़त ले लें। तो बहुत सारी ज़रूरियात ऐसी होती हैं, छोटे बच्चे हैं या कोई और मसरूफ़ियात हैं या घर की खाना पकाने का ज़िम्मेदारी होती है, और खाना पकाने से मुराद मेरी ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखना है। तो लेकिन अगर आपका ससुराल आपके साथ है या और फैमिली के और मेंबर आपके साथ हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, आप एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं तो ज़रूर आपको बैठना चाहिए। तो मैंने आपको एतकाफ़ के बारे में बताया कि एतकाफ़ जो है वो कितनी उसकी अहमियत है और एतकाफ़ का तरीक़ाकार क्या है। लेकिन मैं फिर दोबारा से आपको मज़ीद कुछ और बातें बताती हूँ। यानी एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अल-कफ़ाइया है। एतकाफ़ के माने ठहरने के हैं। इस्तिलाह शरअ में बक़सद इबादत मस्जिद में ठहरने का नाम ही एतकाफ़ है। यानी आपका इरादा आपने ये किया हुआ है या क़स्द किया हुआ है कि आपने मस्जिद में बैठकर इबादत करनी है, इसका नाम एतकाफ़ है। वहाँ पर आपने ठहरना है। जिस मस्जिद में बाजमात नमाज होती हो वहाँ मर्द का इबादत की नीयत से मुकीम होना एतकाफ़ कहलाता है। ठीक है, आपको मैंने बात बता दी थी। औरत के लिए जैसा कि मैंने बता ही दिया, वो जिस जगह नमाज पढ़ती हो या एतकाफ़ की नीयत से वहाँ बैठ जाए और उस जगह मकान का सहन या किसी दूसरे हिस्से और मकान में ना जाए। हाँ, अपना रफ़ा हाजत वगैरह के लिए वो अपनी जगह से उठकर जा सकती है दूसरी जगह पर। इसी तरह अगर खाने का इंतज़ाम एतकाफ़ की जगह पर औरत के लिए नहीं हो सकता और मजबूरन खाने के लिए वो जा सकती है, लेकिन खाना खाते ही फ़ौरन अपनी जगह पर वापस आ जाए। अगर एतकाफ़ की जगह पर खाना पहुँचाने का इंतज़ाम कर दिया जाए तो ये तो बहुत ही एहसन अमल है, और खाने के लिए भी तो उसे खाने के लिए भी अपनी जगह से नहीं जाना पड़ेगा। एतकाफ़ में किसी से बात ना की जाए। एतकाफ़ की हालत में अगर औरत पाकीज़गी नहीं रहती है, नापाकी हो जाती है, तो ऐसी हालत में एतकाफ़ दुरुस्त नहीं होता। तो आपने देखा कि चंद एक बातें मैंने और आपको बताई हैं। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। एतकाफ़ के इक़साम की कौन कौन सी हैं? वाजिब जो है मसलन नज़र का एतकाफ़ जिसमें रोज़ा शर्त है, लिहाजा कम से कम 1 दिन का एतकाफ़ होगा।
और दूसरा है सुन्नत मौक़दा अल-कफ़ाइया, सुन्नत मौक़दा रमज़ान की शाम से ईद का चाँद देखने तक अफ़ज़ल है। सुन्नत मौक़दा अल-कफ़ाइया, ये जो आप इसमें एतकाफ़ में अगर आप बैठ रहे हैं तो 20 रमज़ान की शाम से ईद का चाँद देखने तक अफ़ज़ल है। 20 तारीख से लोग एतकाफ़ में बैठना शुरू करते हैं ज़्यादातर, तो ये आप सुन्नत मौक़दा अल-कफ़ाइया है। इसमें सुन्नत मौक़दा में 20 रमज़ान से शाम से ईद के चाँद तक आपको जो है वो मस्जिद में बैठना अफ़ज़ल होगा। और मुस्तहब तीसरी किस्म है एतकाफ़ की, मुस्तहब यानी वाजिब और सुन्नत के सिवाय तमाम एतकाफ़ मुस्तहब हैं, लिहाजा साल में किसी वक्त भी मुतक़िफ़ हो सकते हैं। ठीक है, तो एतकाफ़ की कम से कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है, और मुस्तहब या नफ़ल एतकाफ़ की कोई मुद्दत नहीं। 10 मिनट की नियत करने या रोज़ाना मस्जिद में दाखिल होते वक्त नियत करने से भी वो उसका आपका एतकाफ़ हो जाता है। अब ये है कि मकरूहात एतकाफ़ क्या हैं। एतकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, और बावजूद किसी ज़रूरत के, बहुत ज़रूरत आपकी अहम हो, तब आप किसी से बात करें। मस्जिद में माल लाकर ख़रीद फ़रोख्त करना ये सब गलत है। लड़ाई झगड़ा करना, बेहुदा बातें करना सब मकरूहात में शामिल है। मकरूहा और एतकाफ़ के मुस्तहबात क्या हैं, यानी एतकाफ़ में नेक और अच्छी बातें करना। अच्छी यानी एतकाफ़ में जब आप बैठे हुए तो आप अच्छी बातें करें, तलावत कुरान पाक पर करें, दरूद शरीफ का विर्द करें, नवाफिल अदा करते रहें, दीनी इल्म सीखें और सिखाएं, वाज़ व नसीहत करें। जामे मस्जिद में एतकाफ़ करना अफ़ज़ल है। ठीक है, और वो अमूर जो मुतक़िफ़ के लिए जायज़ हैं, यानी जो एतकाफ़ कर रहा है उसके लिए कौन कौन से अमूर जायज़ हैं, यानी वो बात रफ़ा हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, चाहे फ़ासला कितना ही क्यों ना हो। रफ़ा हाजत के लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। फ़र्ज़ गुस्ल के लिए निकलना भी जायज़ है। नमाज़ जुम्मा के लिए इतनी देर पहले जामे मस्जिद के लिए निकले कि वहाँ पहुँचकर 4 रकात सुन्नत अदा करें और खुतबा सुन सके, जायज़ है ये। और मस्जिद में खाना पीना, सोना, ऐसी ज़रूरी चीज़ ख़रीदना जो मस्जिद में ना पाई जाए, नीज़ निकाह करना भी जायज़ है। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल ऐसी नौबत नहीं आती है जब हम एतकाफ़ में बैठे हुए होते हैं। तो एतकाफ़ में असल मकसद तो यही होता है कि आपने एतकाफ़ के जो मकासद हैं उनको पूरा करना है, और आपने दुनियावी तमाम चीज़ों से परहेज़ करते हुए सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत की तरफ राग़िब होना है और इबादत करनी है। लेकिन जो चीज़ें आपने जो आपको जिन अमूर का बता दिया गया है कि उनके लिए आप बाहर जा सकते हैं, तो उनके लिए आपके लिए थोड़ी सी देर के लिए जाना जो है वो जायज़ है, आप जा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ना जाना पड़े। लेकिन बाक़ी चीज़ें इंतहाई अहम है, जैसे कि रफ़ा हाजत के लिए जाना, फ़र्ज़ गुस्ल के लिए निकलना, और नमाज़ जुम्मा के लिए इतनी देर, यानी जामे मस्जिद जाने के लिए कि जामे मस्जिद में नमाज़ जुम्मा अदा करें, तो और वहाँ पहुँचकर 4 रकात की सुन्नत अदा कर लें आप और खुतबा सुन सकें। ठीक है, और उसके बाद फिर फ़ौरन आप अपने एतकाफ़ की जगह पर अपनी मस्जिद में वापस आ जाएँ। अच्छा, अब वो अमूर कौन कौन से हैं जिनसे आपका एतकाफ़ जो है फासिद हो जाता है, यानी आपका एतकाफ़ ख़राब हो जाता है। एतकाफ़ की हालत में कोई ऐसा काम करना भूले से, गलती से, जिसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, और मस्जिद से बिला उज़र कसदन या भूल कर चले जाना। आप भूल गए कि नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अचानक आपके दिमाग से निकल गया कि आप एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, और कसदन भूल कर आप चले गए, या बिला उज़र मस्जिद से अगर आप बाहर चले गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये एतकाफ़ फासिद हो जाता है। उज़र की बिना पर मस्जिद से बाहर निकलकर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना भी आपका फासिद हो जाएगा, एतकाफ़ आपका फासिद हो जाएगा। यानी किसी ज़रूरत के लिए आप बाहर गए हैं, लेकिन ज़रूरत के पूरा होने के बाद आप जो है फिर भी ज़्यादा देर तक बाहर रुक गए हैं, तो आपका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बाहर ठहरना। अगर आपने किसी ख़ास मकसद के लिए जा रहे हैं, यानी नमाज़ जुम्मा के लिए जा रहे हैं, फ़र्ज़ गुस्ल के लिए जा रहे हैं, रफ़ा हाजत के लिए जा रहे हैं, तो फ़ौरन ही वापस आ जाना है। बीमारी या खौफ की बिना पर मस्जिद से बाहर जाना, ये भी फासिद हो जाएगा आपका एतकाफ़। इन सब सूरतों में एतकाफ़ जो है वो फासिद हो जाता है। तो आज मैंने दबिस्तान इल्म व अदब में आपको